الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 1 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اتا امر اللہ، آ پہنچا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، سو اس کی جلدی نہ کرو، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور برتر ہے، عما اسے جو یشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، ینزل وہ نازل کرتا ہے، ملائکۃ فرشتوں کو، بالروح وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جسے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندے، ان انذروا کہ آپ کو ڈرائیں، انہو کہ وہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے، انا فتقون پس مجھی سے ڈریے۔ یہاں پہ منکرین خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ پہنچا ہے کہ آپ اس میں جلدی مت مچائیے، وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ذات ہے، اور وہ فرشتوں کو وہی یعنی اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں جس پر چاہے نازل فرماتے ہیں، اور یہ بھی خبردار کیا جاتا ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو مجھ ہی سے ڈرتے رہیے۔ اس سورہ نحل کے رکوع کی ایک آیت میں لفظ نحل استعمال ہوا ہے، لفظ نحل آیا ہے جس کے معنی شہد کی مکھی، اور قدرت کی عجیب و غریب صنعت کے بیان کے سلسلے میں شہد کی مکھیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس لفظ نحل کی علامت کے طور پر اس سورت کا نام نحل قرار دیا گیا۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ ہجرت حبشہ کے بعد مکہ مکرمہ کے آخری دور میں اس کا نزول ہوا۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی 16ویں سورت ہے، لیکن نزول کے حساب سے اس کا شمار 73 لکھا جاتا ہے، یعنی مکہ معظمہ میں 72 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور 17 صورتیں اس کے بعد مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، اور پھر 24 صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اس صورت میں 16 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں، اور اس میں کون کون سے ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صورت میں دوسری مکی صورتوں کی طرح توحید کے بارے میں بات کی گئی ہے، شرک سے انکار کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے والوں کے برے نتائج اور حق کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ صورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے، جس میں منکرین کو مخاطب کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ کفار مکہ بار بار چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے، جب ہم تمہیں اور تمہارے دین کو جھٹلا چکے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ مانتے نہیں تھے، اس لیے وہ آپ کا ورڈ نہیں بلکہ تم کا ورڈ استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ تو اس لیے وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اور آپ کے دین کو جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ جو آپ ہمیں عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا، تو وہ آ کیوں نہیں جاتا جس کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ سورت کی ابتدا انہی کے جواب سے دی گئی ہے کہ اے کمکلو، اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑنے کے لیے جلدی نہ مچاؤ، بلکہ جو مہلت دی جا رہی ہے اسے فائدہ اٹھاؤ اور بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فوراً ہی تفہیم کی تقریر سٹارٹ کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ ٹاپکس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ معقول دلیلوں، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی شہادتوں سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔ منکرین کے اعتراضات، شکوک، ان کی بار بار وہ لیم ایکسکیوزز ایک ایک کر کے اس صورت میں جواب دیا گیا ہے۔ باطل پر اصرار، حق کا انکار کرنے والوں کو برے نتائج سے اس صورت میں ڈرایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین یعنی اسلام انسانی زندگی میں کیا خوبیاں پیدا کر سکتا ہے، اس کا دل نشین انداز بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی تسلی اور ہمت افزائی کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ مخالفین کی مزاحمتوں اور منکرین کی سختیوں کے مقابلے میں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔
اب ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ان آیات کی تفسیر و تشریح اس طرح سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کو بار بار عذاب الہی اور روزے قیامت سے ڈراتے تھے، جس کے جواب میں کفار مکہ کہا کرتے کہ تم جس عذاب اور روزے قیامت سے ڈراتے ہو وہ کدھر ہے؟ اگر سچے ہو تو لے آؤ، ہم بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. کافروں کا دوسرا کہنا یہ بھی تھا کہ اگر عذاب قیامت آ بھی گیا تو ہمارا کیا بگڑے گا، ہمارے ہزاروں سفارشی ہیں، بہت سارے ہمارے سفارش کرنے والے ہیں، ہمارے بہت سارے دیوتا ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، بھیٹیں چڑھاتے ہیں، نظریں دیتے ہیں، نیازیں دلاتے ہیں، وہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گے. کفار کا یہ تیسرا قول یہ بھی تھا کہ اگر بالفرض ہم آپ کو سچا مان بھی لیں تو اس کی وجہ بتائیں کہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، فرشتے کسی پیغمبر کے پاس ہی کیوں آتے ہیں، ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں نہیں آتے، ہمیں براہ راست عذاب کی اطلاع کیوں نہیں دی جاتی، آپ ہی کے پاس اللہ کے فرشتے پیغام لے کر آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. ان کے تینوں اقوال کا جواب ان ابتدائی آیات میں دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ اور حکم یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت غالب رہے اور حق واضح ہو اور جو باطل ہے وہ ذلیل ہو، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں اور مجاہدین کے ہاتھوں آخرت میں بھی یہ دکھائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، مجاہدین کو، اسلام کے نام لینے والوں کو، اسلام کو سربلند کرنے والوں کو. اور جو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، شرک اختیار کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، انہیں سزا ملے گی. اور اس حکم کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ وہ وقت قریب آ پہنچا، قیامت کی گھڑی بھی دور نہیں ہے. جس چیز کا آنا یقینی ہو اسے آیا ہوا ہی سمجھنا چاہیے، جو چیز آنی ہے وہ اس کو آیا ہوا ہی سمجھنا چاہیے. پھر جلدی مچانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پھر جب حق کا غالب ہونا، کفر و شرک پر سزا ملنا یقینی ہے. اے کفار، توحید کی راہ اختیار کرو، مشرکانہ طریقے سے جو بھی آپ نے مشرکانہ طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ. جنہیں تم خدائی کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کوئی خدا کے حکم کو نہیں ٹال سکتا، نہ تمہارا کوئی دیوتا کسی کی سفارش کر سکتا ہے، نہ ہی جتنے بھی آپ نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں کوئی بھی آپ کو عذاب الہی سے بچا سکتا ہے. یہ ناممکن ہے کیونکہ اللہ رب العزت الوہیت ہے، ربوبیت ہے، کمال قدرت رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی پاور اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے. وہ مختار کل ہے، اس کے کام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. اب رہی تیسری بات تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ہر کسی کے پاس اپنے فرشتے نہیں بھیجا کرتا. وہ اپنے بندے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سلیکٹڈ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے اپنی حکمت کے مطابق اپنے کامل اختیار سے چن لیا ہے، اور انہی کے پاس اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو کلام الہی لے کر اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور توحید کی تعلیم، شرک کا رد اور تقوی کی طرف دعوت دیتے ہیں. اکثر مفسرین کا کہنا ہے یہاں آیت میں امر اللہ یعنی اللہ کے حکم سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ ان دشمنوں کو ضرور مغلوب کیا جائے گا اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت اور عزت عطا ہوگی. اور پھر بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس آیت میں حکم اللہ سے مراد قیامت ہے، اور اس کے پہنچنے کا مطلب یہی ہے کہ بہت قریب ہے کہ آ چکی ہے، وہ ٹائم آ چکا ہے یا وہ ٹائم بہت قریب ہے. خالق اور پیدا کرنے والا السماوات آسمان کا، والارضی اور زمین کا، بالحق بھی ٹھیک ٹھیک، تعالی عما یشرکون، پھر بھی آپ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. خلق الانسان، پیدا کرنے والا انسان کو، من نطفت، نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا. والانعام، اور جانور، خلقہا، اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اس نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے. جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالا اور برتر ہے. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا، اور جانور اسی نے پیدا کیے. لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون،
जिसमें तुम्हारे लिए सर्दी से बचाव का सामान है और इसके अलावा बहुत सारे फायदे हैं और इन्हीं में से तुम खाते भी हो। वलकुम फीहा जमालुन हीना तुरीहून व हीना तसरहून। और जब तुम इन्हें शाम के वक्त घर लाते हो और जब इन्हें सुबह को चराने ले जाते हो तो उनमें आपके लिए एक खुशनुमा मंजर भी मौजूद है। वतहमिलु अस्कालहुम, और ये उठाए हुए हैं बोझ, इला बलदिन लम तकूनु बालिगीही इल्ला बिशिक्किल अनफुस इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम। और ये तुम्हारे बोझ लाद कर इसे शहर तक ले जाते हैं जहां तुम जान जोखों में डाले बगैर नहीं बेच सकते। हकीकत ये है कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत शफीक बड़ा मेहरबान है। इससे बहुत बाला और बरतर है, लिहाजा इसके साथ शिर्क करना इसकी तौहीन है और खल्क़ कायनात की तौहीन का लाज़मी नतीजा ये है कि तौहीन करने वाले पर अज़ाब नाज़िल हो। यानी इंसान की हकीकत तो इतनी है कि वो एक नापाक बूंद से पैदा हुआ, नुतफ़े से पैदा हुआ है। लेकिन जब इसे ज़रा-सी कुव्वत-ए गोयाई मिली, ज़रा से उसको बोलने की ताकत मिली और ज़रा-सा बात करने का उसको इख्तियार मिला, तो उसने जिस ज़ात पाक ने इसे एक नापाक बूंद से एक मुकम्मल इंसान बनाया, इसने अ, उस ज़ात पाक ने उसे अशरफुल मखलूक़ात का रुतबा बख्शा। उसने उसी की ज़ात के साथ शरीक ठहराकर उसके लिए झगड़ना शुरू कर दिया। अब इसमें बात हो रही है उन तमाम लोगों की जो कि शरीक ठहराने वाले थे। अब जिस परवरदिगार ने ज़ुबान अता की, जिस परवरदिगार ने ताकत अता की, उसी के लिए बोलना स्टार्ट हो गए हैं, उसी के लिए शरीक ठहराना स्टार्ट हो गए हैं, उसी के साथ शरीक ठहराते हैं। अब इसमें उन तमाम मुशरिकीन की बात की जाती है जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराते हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस्बात तौहीद के लिए काफ़ी दलाइल बयान किए हैं। सबसे पहले अक़ली दलाइल यहाँ पे बयान किए जाते हैं। सबसे पहली दलील ये फरमाई गई है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान का निज़ाम कंट्रोल करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको इस तरह से मेंटेन किया है जिसको देखकर यकीन करना पड़ता है कि तमाम कायनात को चलाने वाला, मेंटेन करने वाला एक ही मालिक मुख्तार हो सकता है और वो एक ही मालिक मुख्तार है। अगर कई बाइख्तियार खुदाओं के हाथों में बागडोर होती तो ये इतना सिस्टमैटिक जो सिस्टम चल रहा है वो इतनी मुद्दत तक हरगिज़ कायम ना रहता। आपस में टक्कर हो जाती बल्कि कई आज़ाद खुदाओं की कशमकश बाहमी सिरे से इस निज़ाम को मौजूद ही ना होने देती। तो जब अल्लाह के सिवा कोई और खालिक नहीं तो लाज़मी नतीजा यही निकलता है कि वही वहदहू ला शरीक है, इसका कोई शरीक नहीं, वही इलाह है, वही माबूद है। दूसरी दलील यहाँ पे ये दी जाती है, ये बयान फरमाई जाती है कि अल्लाह ने इंसान को एक कतरा नाचीज़ से पैदा किया, एक नापाक कतरे से पैदा किया यानी नुतफ़ा से, इसका खून बना, फिर खून का लोथड़ा बना, फिर लोथड़े से बॉडी तैयार हुई, फिर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो थे वो और इसके पार्ट्स बने। हर अज़ू को इसके मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा, ज़ाहिरी और बातिनी हवास अता किए, अक्ल की रोशनी के लिए इसके दिमाग को मुनव्वर किया, रूह इसके अंदर फूँक दी और रूह फूँकने के बाद जीता जागता अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान बना डाला। तो इंसान अगर खुद अपनी क्रिएशन पर गौर करे तो हक ताला की अजीबो-गरीब इस क्रिएशन को देखकर ही उसको इतना लेसन मिलेगा कि अल्लाह ताला ने किसको तख्लीक कर दिया। क्या अल्लाह ताला ने खूबसूरत क्रिएशन की। अल्लाह ताला ने किस तरह से क्रिएशन कर दी है इंसान की, अगर इंसान अपनी ही तख्लीक को देखे और फिर वो अपनी तख्लीक पर गौर-व-फ़िक्र करे तो वो तमाम चीज़ों को भूल कर अल्लाह की कारसाज़ी, अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह ताला की रब्बियत, यहाँ तक कि इन तमाम चीज़ों पर जब वो गौर करेगा तो उसको अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी बजाए इससे कि वो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराए। लेकिन उसने क्या किया? वो इन तमाम क्रिएशंस को भूल कर अल्लाह ताला की कारसाज़ी को, वहदानियत को,
उलूहियत को, वो इसी की हस्ती के बारे में झगड़ने लगा। किसी ने अल्लाह को मजबूर जाना माअज़ल्लाह, किसी ने अल्लाह ताला के लिए बहुत सारे माबूद बना लिए, किसी ने अल्लाह ताला के वजूद का इनकार कर दिया और इंसान ने यहाँ तक यकीन नहीं किया कि उसको पैदा करने वाला, उसके एक-एक बॉडी के पार्ट को रेडी करने वाला, उसको अक्ल अता करने वाला, इसको इल्म अता करने वाला, इसको तरक्की देने वाला कौन हो सकता है? कौन है? कौन तरक्की देने वाला है? कौन उसकी तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने वाला है? वो अल्लाह तबारक व तआला है। तो इसके बारे में फिर तौहीद में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तीसरी दलील यहाँ पे ये दी गई है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जानदारों को पैदा किया जो आपके ताबे कर दिए अल्लाह ताला ने। वो आपके अंडर हैं, वो आपको फ़ॉलो करते हैं, आपकी बातों को फ़ॉलो करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। अल्लाह ताला ने ये आपके लिए पैदा कर दिए हैं, जिसमें ऊँट है, गाय, भेड़, बकरी अल्लाह ताला ने आपके लिए पैदा किए हैं, जिसके इंसान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं, यहाँ पे सिर्फ़ 4 फ़वाइद इंसानों को बताए गए हैं, जो कि करीबन हर शख्स जानता है। एक ये कि भेड़, ऊँट वगैरह के लिए ऊन से सर्दी से बचने के लिए लिबास तैयार किया जाता है। कंबल वगैरह या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, मुख़्तलिफ़ किस्म के लिबास भी तैयार किए जाते हैं। दूसरा फ़ायदा इनका दूध इस्तेमाल होता है, डेयरी के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। दूध पिया जाता है, गोश्त खाया जाता है और चर्बी वगैरह वो भी बहुत सारे कामों में यूज़ होती है। फिर तीसरा इनका फ़ायदा ये है कि जिस शख़्स के पास जानवर बकसरत होते हैं, इसको एक ख़ास इम्तियाज़ और इज़्ज़त हासिल होती है। सुबह को इसके जानवर जंगल चरने जाते हैं या बाहर चरने जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। मालिक खुद भी इनको देखकर खुश होता है। दूसरे लोग भी कहते हैं कि अल्लाह ने फलाँ को कैसा माल और क्या कुछ अता किया। इसको माल बोलते हैं कि माल अता किया है, मवेशी अता किए हैं अल्लाह ताला ने इसको और किस तरह से वो खुद भी उनको देखकर खुश होता है। दूसरे लोग भी कहते हैं कि अल्लाह ने इसको कितना अता किया है, कितना और अरब के पूरे मुल्क में जिनके पास जानवर ज़्यादा होते हैं, जिसके पास ऊँट ज़्यादा होते हैं, उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। और लोग समझते थे कि इनकी बहुत इज़्ज़त है, इनके पास बहुत मालो-असबाब है क्योंकि इनके पास ऊँटों की कसरत बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे जानवरों की एग्ज़ाम्पल दी गई है कि अल्लाह ने वो आपके फ़ायदे के लिए बना दिए हैं और वो आपकी बात मानते हैं, आपके काम करते हैं और आप इसके ज़रिए क्योंकि पहले जो बिज़नेस किया जाता था, तजारत की जाती थी, ऊँटों के ज़रिए से ही की जाती थी और इन्हीं के ज़रिए से लोग अपना असबाब तिजारत या ज़रूरतें, सामान वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे और क्योंकि मुश्किल होती थी, ज़्यादा सामान होता था, वो उठा नहीं सकते थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी है कि ये आपके कितने काम के लिए बना दिए। चौथी दलील ये बयान की गई है, अल्लाह ताला ने घोड़े, गधे और खच्चर को भी बगैर किसी फ़ायदे के पैदा नहीं किया। इनको भी अल्लाह ताला ने किस तरह से पैदा किया? आपके काम के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है। وَتَحْمِلُ أَثْقَالَهُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ और वो तुम्हारे बोझ उठाकर शहर ले जाते हैं, जहाँ तुम अपनी जान मेहनत में डालते हो और जहाँ तुम पहुँच नहीं सकते और वाक़ई ही आपका रब बहुत शफ़क़त वाला और रहमत वाला है कि उसने जानवरों को भी आपके ताबे कर दिए। वल खैला और घोड़े, वल बिगाला और खच्चर, वल हमीरा और गधे। अब ये 3 चीज़ों के जानवरों की बात की जाती है जिनको बड़ी हक़ारत से देखा जाता है। वल खैला और घोड़े, वल बिगाला और खच्चर, वल हमीरा और गधे। इन 3 जानवरों की बात की जा रही है। लितरकबूहा ताकि तुम इन पर सवार हो, ताकि तुम इन पे सवारी कर सको। वज़ीनतन और ज़ीनत है। व यख़्लुक़ु और वो पैदा करता है मा जो ला तअलमून तुम नहीं जानते। व अलल्लाहि और अल्लाह पर क़स्दुस सबीलु सीधी राह है, वो मिन्हा और इससे जाइरुन टेढ़ी, वलो शाअ और अगर वो चाहे लहदाकुम तुम्हें हदायत देता है अजमाइन सब के सब लोगों को। और अल्लाह ताला ने घोड़े, खच्चर, गधे भी पैदा किए बगैर किसी वजह के पैदा नहीं किए, बिला मकसद पैदा नहीं किए। अल्लाह ने आपके काम आने के लिए पैदा किए ताकि आप इन पर सवारी कर सको, ताकि ये आपकी ज़ीनत भी घोड़ों को ज़ीनत करार दिया गया है, उनको खूबसूरती करार दिया गया है। और ये ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाता है जिसकी आपको खबर नहीं होती लेकिन वो आपके काम आ रही होती हैं। वयख़्लुक़ु मा ला तअलमून अल्लाह ने ऐसी-ऐसी चीज़ों को बना दिया है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, जिसके बारे में आप गुमान नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप ये भी अल्लाह ने ये भी बना दिया हमारे फ़ायदे के लिए। अल्लाह ने एक इंसान के लिए दूसरे इंसान को फ़ायदे वाले बना दिया। अब हम एक-दूसरे के काम आते हैं, एक-दूसरे के लिए अल्लाह ताला ने हमें फ़ायदे के लिए पैदा किया है और हमें उसके लिए
ट्रेनिंग भी दी गई है कि बीइंग अ मुस्लिम आपके क्या-क्या फ्राइज़ हो सकते हैं, क्या-क्या आपकी ड्यूटीज़ हो सकती हैं, किस तरीके से आपने इनको परफ़ॉर्म करना है, आपने किस तरीके से एक-दूसरे के काम आना है। लेकिन सम टाइम हम अपनी ड्यूटीज़ को सही से जब परफ़ॉर्म नहीं करते, हम उन ड्यूटीज़ को एक-दूसरे का ख़्याल रखने की बजाय जब हम और चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो बजाय आसानी के हम मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं। अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं, लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को बिला मकसद पैदा नहीं किया, इवन गधे को बिला मकसद पैदा नहीं किया, इवन घोड़े को बिना मकसद पैदा नहीं किया, खच्चर को बिला मकसद पैदा नहीं किया। इनको आपके लिए बामकसद बना दिया और अल्लाह ने ऐसी-ऐसी चीज़ों को पैदा किया है, जो कि आपके फ़ायदे के लिए हैं और जो आप जानते नहीं हैं कि अल्लाह ने क्या-क्या चीज़ किस-किस चीज़ को किस तरह से पैदा किया है। इवन अगर हम जर्म्स की बात करें, तो बहुत से जर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? तो हम उन चीज़ों को वो इनविज़िबल हैं, हम उनको देख नहीं सकते और लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पैदा की हैं कि जो इनविज़िबल हैं, अगर हम उनको देख नहीं सकते, तो सुन्नत के ज़रिए से बताया जाता है कि आप परफ़ॉर्म जैसे करेंगे, आप जैसे अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करेंगे, तो जर्म्स भी दूर हो जाएँगे। जर्म्स भी दूर हो जाएँगे। आप खाना खाएँ, सबसे पहले अपने हैंड वॉश करें, 3 टाइम इनको हैंड्स को अपने वॉश करें, वॉश करने के बाद आप जब खाना खाएँगे तो आपके सारे जर्म्स दूर हो जाएँगे। ये आपकी साइंस तो नहीं हमें बताती। साइंस तो अब बताती है ना कि आपके हाथों पे जर्म्स होते हैं। अब जो है हम देख सकते हैं जो है हम उनको अच्छे तरीके से देखते हैं कि हाँ, साइंस ने ये तरक्की कर ली है। इनविज़िबल जर्म्स भी नज़र आ रहे हैं, नेल्स के अंदर अगर जर्म्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अ, 14 सदियाँ पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें बता दिया कि आपने अपना लाइफ़स्टाइल कैसे मेंटेन करना है। और बता दिया कि बहुत सारी ऐसी अल्लाह की क्रिएशन है, वयख़्लुक़ु और वो पैदा फरमाता है या वो क्रिएट करता है, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने ऐसा-ऐसा कुछ बना डाला, ऐसी-ऐसी क्रिएशन कर दी, ऐसी-ऐसी मख़लूक़ बना दी, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ने क्या-क्या बना के रखा हुआ है। और वो हमारे फ़ायदे के लिए भी है और बहुत सारे अगर जर्म्स की बात करें, तो वो हमारे लिए फ़ायदे देते हैं। अगर हम मेडिसिन की बात करें, तो वो मेडिसिन में भी बहुत सारे ऐसे जर्म्स भी हो सकते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदा दे रहे होते हैं। ठीक है ना? वअलल्लाहि और अल्लाह के लिए है वसतुस सबीली सीधी राह व मिन्हा और इससे जाहिरुन टेढ़ी वलौ शाअ अगर वो चाहे लहदाकुम तुम्हें हिदायत देता है अजमाइन सबके सबको। अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत दे देता। कोई एक बंदा भी ऐसा ना होता कि जो अल्लाह की बात मानने वाला ना होता। अब देखिए जो फरिश्ते हैं ना बिल्ट इन उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, ज़िक्र करना है, क़याम करना है, अल्लाह की इबादत करनी है और एक ही चीज़ ना वो खाते हैं, ना वो सोते हैं, ना वो पीते हैं, ना कोई और बात करते हैं। ज़िक्र करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं। ये चीज़ें उनके अंदर बिल्ट इन है, ये सॉफ्टवेयर उनके अंदर पहले से अल्लाह ने रख दिया है। एक अल्लाह ने उनके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया है, वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अ, देखिए जो इंसान है इसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना दी है। लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया कि आपको 2 रास्ते हैं उनमें से एक चूज़ करना पड़ेगा। जिनके और अल्लाह ताला फरमाता है कि सीधा रास्ता अल्लाह तक पहुँचता है और बाज़ टेढ़े रास्ते भी हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन-सा रास्ता चूज़ करते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पहुँचते हैं। अगर तो आप सीधा रास्ता चूज़ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पहुँचेंगे, तो फिर आपको एज़ अ रिवार्ड जन्नत दी जाएगी और अगर आप टेढ़े रास्तों पर चल पड़ेंगे, जो आपको बज़ाहिर अट्रैक्टिव लगेंगे कि ये बड़े अट्रैक्टिव रास्ते हैं, लेकिन वो फिर क्या होगा कि वो थोड़े टाइम के लिए होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दौलत, शोहरत, खूबसूरती, हर चीज़ जो कि आजकल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनी हुई है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी खूबसूरती है, ब्रांड्स हैं जो भी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनी हुई हैं, लेकिन सब के सब यहीं रह जाने हैं और अल्लाह ताला ने इस कायनात को इतना खूबसूरत बना दिया, लेकिन साथ ही बताया कि आपने इसमें से सिलेक्ट करना है एक रास्ता जो मेरे तक आता है, उस पे चलोगे तो आपको एज़ अ रिवार्ड जन्नत मिलेगी, अदरवाइज़ फिर आपको भी लटकना पड़ेगा। आपको भी लटकाया जाएगा, आपको भी फिर भट्टी में जलाया जाएगा, क्योंकि अगर आपने उसकी बात ना मानी होगी।
अब यहाँ पे जो 4 दलाइल दिए गए हैं, इन चारों दलाइल को साबित करने के लिए वो किस चीज़ को साबित करेंगे? तौहीद को साबित कर रहे हैं। अब जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, इसकी परवरिश की, इसकी बका व आसाइश के सामान किए और अल्लाह ताला ने फिर इसको अपनी बारगाह क़ुद्स तक पहुँचने का सीधा रास्ता भी बता दिया। जिस तरह ज़मीनी रास्ता तय करके इंसान अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुँचता है, इंसान अपने गोल्स तक पहुँचता है, ऐसे ही अल्लाह ताला तक पहुँचने का रास्ता भी खुला हुआ है, जिसकी समझ सीधी होगी, जो अपने अक़ल को इस्तेमाल करते हुए, अपने बसाइर को इस्तेमाल करते हुए, गौर-व-फ़िक्र करते हुए अल्लाह ताला की कुदरत, अज़मत और वहदानियत पर ईमान लाएगा, तौहीद व तक़वा की सीधी राह पर चलकर बगैर किसी डर के अल्लाह तक पहुँच जाएगा। लेकिन जिसकी अक़ल सीधी नहीं, इसे सीधी सड़क पर चलने की तौफ़ीक कहाँ हो सकती है? वो हमेशा गलत और बातिल ख़यालात की पचीदा पगडंडियों में भटकता फिरेगा और कहेगा इस चीज़ में भी ऐसे है, इस चीज़ में भी ऐसे है, इस चीज़ में भी ऐसे है। तो वो उन्हीं चीज़ों में भटकता रहेगा और एंडिंग पॉइंट आ जाएगा, उसका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। तो अगर अल्लाह चाहता तो सब के सब लोगों को भी हिदायत दे सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इंसान को बता दिया कि खैर और शर में डिफ़रेंस जो है वो रख दिया गया है और इसको खुद से आपने ऑब्ज़र्व करना है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन भी तुम्हारी तरफ से होगा। खुद आपने उसको चूज़ करना है, खुद आपको उस पे इम्प्लीमेंट करना होगा, खुद आपको उस रास्ते को सर्च करना होगा। उसके लिए अल्लाह ताला ने अपने मैसेंजर्स भेज दिए, अल्लाह ताला ने अपने प्रॉफ़िट भेज दिए, अल्लाह ताला ने अपना मैसेज हमारे तक कन्वे करने के लिए मैसेंजर्स को भेज दिया, प्रॉफ़िट को भेज दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया, 1,24,000 पैगम्बरों को भेज दिया, 313 रसूलों को भेज दिया कि वो आएँ और आके हमें खैर और शर का डिफ़रेंस बता सकें। डिफ़रेंस बताया अपने मैसेंजर्स के ज़रिए से, डिफ़रेंस बताया कि आप क्या डिफ़रेंस है और जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जितने रसूल थे, सबका एक ही मोटो था, सब एक ही इलाह की तरफ बुलाने वाले थे, सब एक खुदा की तरफ बुलाने वाले थे, सब एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाले थे और क्या क्या था सबका एक मोटो? सब एक जन्नत की तरफ बुलाने वाले थे। सबका एक ही मोटो था, वो ये था कि अल्लाह एक है, वही वहदहू ला शरीक है, वही सबको रिज़्क देने वाला है, वही सबको पालने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी के अकॉर्डिंग काम किया। जब इंसान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका बता दिया, उसको बता दिया किस तरीके से अल्लाह ताला एग्ज़ाम्पल्स देता है, लेकिन फिर भी इंसान समझता नहीं है, फिर भी इंसान उस पर ईमान नहीं लाता। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अब ये मैंने इंसान पे छोड़ा है कि वो 2 रास्तों में से कौन-सा रास्ता चूज़ करता है, वो मेरे तक आता है या फिर ये जैसे कि हमने लास्ट सूरत में सूरह हिज्र में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि शैतान क्या करता है, वो शैतान आपको बुरे रास्ते पर लगाता है और आपको बहकाता है, फिसलाता है, बुरे रास्ते पे लगाता है, लगाने के बाद खुद साइड पे हो जाता है, सारा इल्ज़ाम इंसान पे आ जाता है कि इंसान ने ऐसे किया, इंसान ने वैसे किया, इंसान ने ये किया, लेकिन आपको बहकाने वाला शैतान होता है। फिर कहीं ये नाम आता है कि शैतान ने ऐसे किया था जब आपको बेइज़्ज़त किया जा रहा हो, जब आपसे कहा जा रहा हो कि आपने झूठ बोला, आप बेइज़्ज़त हो गए, आप ज़लील हो गए, शैतान का कहीं नेम नहीं आता, बल्कि यही कहा जाता है कि इसी बंदी ने ऐसे किया, इसी ने ऐसे किया, इसी ने ऐसे किया। ठीक है ना? तो इसलिए कहा जाता है कि आप रास्ता वो चूज़ कीजिए जो कि रहमान की तरफ जाता हो। जो कि रहमान की तरफ रास्ता जा रहा है, जब आप उसको चूज़ करेंगे, हमेशा दुआओं का एहतमाम करेंगे, अज़कार का एहतमाम करेंगे, अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में रहेंगे, तो कभी भी शैतान की ज़रूरत नहीं होगी कि वो आपको बहका सके, फिसला सके, आपको अपने असल मकसद से पीछे कर सके। तो हमेशा अल्लाह ताला से अमन की दुआ कीजिए, अल्लाह ताला से हमेशा आफ़ियत की दुआ किया कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें हकीकी तौहीद और अपनी ज़ात पाक की सही मारिफ़त नसीब फरमाए और दुनिया में जितनी चीज़ें हमें अता की हैं, हमें इन्हें अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपने फ़ज़ल से दीन इस्लाम की सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें कुरान के साथ कनेक्टेड रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।